मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड और कोहरा बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तो वहीं लोग जो रास्ते में अपने वाहन से जा रहे हैं, रफ्तार धीमी करके जाना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त तक काफी कम हो चुकी है। फिरोजपुर में भी ठंड का काफी कहर इस तरह से देखने को मिला है। कोहरा पड़ने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और कोहरा पड़ने से रेल यातायात भी काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिरोजपुर डिवीजन की तरफ से कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 14 गाड़ियां रद्द की गई और 4 आंशिक रूप से कैंसिल कर दी गई हैं। कोहरे के चलते कई 12 पैसेंजर रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं, जो कि कई रूट पर वही रेलगाड़ी अहमदाबाद जम्मू तवी करीब 20 मिनट लेट चल रही है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब मेल पीछे से 4 घंटे लेट पहुंची और कई रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो देरी के साथ चल रही हैं। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਹੈ ਅੱਜ? ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਿੰਨ ਜੈਕਟਾਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਚਾਅ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। 9:40 पे ट्रेन था पंजाब में, वो आया 11 बजे दिल्ली आया। 4 घंटा लेट था, आने जाते 4 घंटा लेट हो गया। तो कितनी मुश्किल हो जाती है? मुश्किल तो काफ़ी है, क्या करो। तो ठंड से कैसे बचाव कर रहे हैं अपना? ठंड से हम लोग कपड़ा पहन के मैं यमुनानगर से आया हूँ सर, मेरे दोस्त का पेपर आज बीएसएफ का। अच्छा। पहले हम दिल्ली गए, दिल्ली से 2 घंटे लेट थी ट्रेन, फिर यहाँ पे आते होते 4 घंटे लेट हो गई है। तो ये कारण क्या समझते हैं? धुंध काफ़ी है? यस धुंध, कोहरा काफ़ी है? हाँ जी। तो ठंड काफ़ी पड़ रही है? हाँ जी, बहुत ठंड है जी। तो कैसे अपना बचाव कर रहे हैं आप? बस बैठे हैं जी, स्वेटर ये कम्बली लेके, कंबल लेके बैठे हैं। और आज तो कुछ दिखा। अमोगा के सरकारी अस्पताल में लड़ाई झगड़े में घायल हुए एक मरीज जसप्रीत सिंह पर अस्पताल के अंदर ही हमला कर दिया गया है। जसप्रीत ऑर्थो वार्ड में भर्ती किया गया था और रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास कुछ लोग वहां पहुंचे और धारदार हथियारों के साथ हमला करना शुरू किया। दूसरे दाखिल मरीजों को भी इस बीच धमकाया गया है और उन्होंने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। जसप्रीत ने यह भी बताया कि चाचा के साथ किसी पुरानी रंजिश के चलते उस पर यह हमला किया गया है। अस्पताल में वो अपना इलाज करवाने के लिए दाखिल हुआ था, लेकिन उसी रात दोबारा वो लोग आए और वार्ड में आकर पिटाई करना शुरू किया। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ 4 ਜਣੇ ਆਏ, 4 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਕਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2 ਰਾਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੇਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਝਾਕਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਝਾਕਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ? 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਛਾਣ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਡੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਬੁੱਕਨਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਪਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ और खबर वर्धा से है, जहां पर एसटी बस की चपेट में आने की वजह से एसटी चालक की मौके पर मौत हुई है। यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ और इस दुर्घटना को लेकर कुछ बस चालकों ने कहा है कि ऐसा हादसा इसलिए होता है क्योंकि बिना मरम्मत वाली कारों को एक ही सफर पर भेज दिया जाता है। यात्रियों की जान बचाते बचाते खुद बस चालक की मौत हो गई है। इस घटना पर सभी एसटी चालकों में काफी आक्रोश है। इस बीच आपको बता दें कि आक्रोश व्यक्त करने के लिए सभी एसटी चालक और वाहन जो वाहक हैं वो रामनगर डिपो पर इकट्ठा हुए। स्पेअर पार्ट उपलब्ध नसले होत नसल्यामुळे आपल्याला गाड्यांचं इथे काम बरोबर होत नाही आणि नादुरुस्त गाड्या तशाच त्या मार्गावर पाठवत असल्यामुळे अपघाताला आमंत्रण मिळते आणि त्याचाच एक प्रकार म्हणजे आज एक चालक दगावला। या विषयावर आम्ही आगार व्यवस्थापकाशी बोलून वारंवार त्यांच्याशी चर्चा केल्या तरी त्याच्यावर कुठल्याही अधिकाऱ्यांचं लक्ष घातलं जात नाही। म्हणून आज विभाग नियंत्रक यांच्याशी प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांना सदर बाबत अवगत केले। त्यांनी आश्वासन दिलं मी स्वतः त्यामध्ये चालकांनी आवाज सुद्धा केले, वाहकांना सांगितलं सुद्धा की ब्रेक फेल झाले आणि त्यांनी प्रवाशांचे 26 प्रवाशांचे जीव वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव गमावला। त्यांनी स्वतः गाडी डिवायडरवर चढवली आणि स्वतःची ज्योत बंद पडली त्यांची, त्यामुळे त्यांचा अंतिम संस्कार झाला आणि खूप मोठी दुःखद अवस्था आहे। त्यामुळे या ब्रेक फेलचे हे प्रकरण काल त्यामध्ये चालकांनी आवाज सुद्धा केले। नाही म्हणजे कसं तर ब्रेक फेल तर मी कंडक्टर असल्यामुळे मी सांगू शकत नाही, परंतु त्या वेळेला तो ब्रेक फेल झाले होते। समोर ट्रकवाल्यांनी ब्रेक दाबले, मग त्यानंतर मग यांनी ब्रेक दाबले तर याचा ब्रेक काही लागले नाही। ब्रेक रोल झाले ते चालक ओरडत होते आम्हाला आणि मग गाडी थांबत नाही म्हणून मग त्यांनी त्या डिवायडरवर चढवली गाडी, तेव्हा त्या डिवायडरवर गाडी थांबली। बस तेवढंच। 26 प्रवासी होते, सगळ्यांचा प्राण त्यांनी वाचवले। पनवेल में ओएनजीसी गेट के पास एचपी पेट्रोल पंप के पास एक कार में अचानक आग लग गई। आग की वजह से कार सवार लोगों ने आनन फानन में कार से उतरकर अपनी जान बचाई है। इस घटना की जानकारी पाकर पास के ही पेट्रोल पंप से दमकल विभाग की गाड़ी को तुरंत वहां पर पहुंचाया गया और ट्रैफिक पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां पर इस समय सोशल मीडिया वॉर चल रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर पर लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। तो वहीं बीजेपी भी लगातार समाजवादी पार्टी को निशाना साधते हुए प्रत्यारोप लगा रही है। इस बीच एक और यहां पर वीडियो सामने आई है, वो आप सुनिए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के निर्देशन में, अखिलेश यादव की अनुमति से, अखिलेश यादव की सहमति से समाजवादी पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल लगातार गाली गलौज करने का काम कर रहा था और यह बात अब प्रमाणित हो गई है। जब मनीष जगन अग्रवाल जो ट्विटर हैंडल का संचालक है उसकी गिरफ्तारी होती है तो अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय अपने पार्टी के नेताओं के साथ पुलिस मुख्यालय घेरने पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी जेल मिलने पहुंच जाते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई कि अखिलेश यादव की सहमति, अनुमति और नेतृत्व में ये पूरे गाली गलौज का पूरा वितंडावाद खड़ा किया जा रहा था ताकि विरोधी दल के लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें। लेकिन ये अखिलेश यादव को मुगालता पूरी तरह धराशायी होगा। अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून कठोरता। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी कल पुलिस मुख्यालय गए थे। भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति है, यही परंपरा है कि दूसरों को गाली देके भारतीय जनता पार्टी में प्रमोशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बदल। और हमीरपुर में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई थी और इसी वजह से सैकड़ों घरों को इस बाढ़ ने अपनी आगोश में लिया।
इसके बाद कुछ लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से राहत मिली, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना छत के घास फूस की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में उनके सामने इस साल की ठंड आफत बन चुकी है। गलन भरी इस ठंड और सर्द हवाओं के थपेड़ों के बीच पहाड़ जैसी रात गुजारना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में ये लोग पूरी रात अलाव जलाकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे इधर पे हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है और यहाँ सर्दी की वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर्दी में जानवर भी वहीं, अपना लेटना भी वहीं का, खाना पीने की भी जगह वहीं व्यवस्था उतने में लेटना है। और यहाँ उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत सर्दी में है, उनको कोई यहाँ सुविधा सरकार नहीं मिल रही है यहाँ इनके लिए। अलाव में बच्चे भी बैठे हैं, इनके सारे बच्चे हैं अपना अलाव में, अपना रात 10, 11, 12, 1 बजे तक अपना इसी में गुजारा करते हैं। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर निकल के इसी में अलाव में आ जाते हैं। और उतना उनकी जो झोपड़ी बनी हुई है उसमें रहने की व्यवस्था। हमीरपुर में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई थी, जिसने सैकड़ों घरों को अपनी आगोश में लिया था, जिसके बाद कुछ लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से राहत मिली थी, लेकिन कुछ अभी भी बिना छत के घास फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने इस साल की ठंड आफत बनी हुई है। गलन भरी ठंड और सर्द हवाओं के थपेड़ों के बीच पहाड़ जैसी रात गुजारना इनके सामने मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऐसे में यह लोग पूरी रात आग के सहारे गुजार रहे हैं। हमीरपुर मुख्यालय का मेरापुर इलाका ऐसा इलाका है जो यमुना और बेतवा के बीच में बसा है। इस इलाके में हर साल बाढ़ आ जाती है और तमाम घरों को अपनी आगोश में लेती है और तमाम घर तबाह करके चली जाती है। इस साल भी कई घर गिरे थे, जिसको सरकारी सहायता मिली, वो घर बनाकर जीवन काट रहे हैं। लेकिन आधा दर्जन परिवार ऐसे भी रह गए हैं जिनको सरकारी सहायता नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। हमीरपुर में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई थी। और इस बीच अयोध्या पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने रामलला के दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद अयोध्या शहर के शहादतगंज स्थित 4 ओवर लेन में वो आयोजित देर शाम को अयोध्या महोत्सव में समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया है कि भगवान रामलला के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने जो संकल्प लिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यह संकल्प अब पूरा हो चुका है। भगवान राम के दैविक भौतिक तापा का, उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप, उनके श्री राम के समरसता का जीवन, न्याय दर्शन का, श्री राम का जो लोकतंत्र में राजा राम का जो स्थान रहा है, सबके लिए राजा राम, ऐसी मर्यादित बातों को हम देश भर में स्थापित करेंगे। ये मंदिर केवल भगवान राम का लला का दर्शन का ही नहीं, ये मंदिर हमें और कन्नौज के हजीरन में व्यापारी लोन की रकम चुकाने के लिए बैंक पहुंचा, लेकिन पूछताछ के दौरान फील्ड ऑफिसर से उसकी कहासुनी हुई। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार बैंक कर्मी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खाता धारक के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और वायरल वीडियो होने पर लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। और रायबरेली के सबसे बड़े सांस्कृतिक मेले रायबरेली महोत्सव में आज पुलिस की टीम और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने उसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने डायल 112 वाहन के कटआउट पर बनाई गई सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। पुलिस अधीक्षक इस दौरान उन्होंने कहते हुए मिले कि उन्होंने कहा कि यह महोत्सव रायबरेली का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं। ये भी कहा गया कि महिला सुरक्षा से जुड़े डायल 112 की खूबियां और उनके लिए कितना उपयोगी है, ये बताने के लिए ऐसा मेला उपयुक्त स्थल है। रायबरेली महोत्सव एक बहुत बड़ा महोत्सव है। यहाँ पे तमाम रायबरेली की जनता और आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं। उन सब लोगों के अंदर डायल 112 की जागरूकता
उसका क्या कंट्रीब्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर में और क्राइम कंट्रोल में, किस तरीके से लोगों की वो मदद कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने के लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ पे प्रशिक्षित लोगों को इस बात के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आने वालों को ब्रीफ करें, उनको बताएं डायल 112 की सर्विसेज कहाँ कहाँ किस तरीके से उनको मिल सकती हैं, कितना कम रिस्पांस टाइम में उनको मदद मिल सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ लगातार जनता को बताया जा रहा है ताकि जनता के अंदर ये जो डायल 112 की सर्विसेज हैं। इस स्टॉल को देख के ऐसा लगा कि जो वाकई में पीड़ित हैं, जिनको अभी जानकारी नहीं है या किसी प्रकार के दबाव में रह रहे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये की जाने वाली सबसे अच्छी सुविधाओं में से एक है। अच्छे से आप करेंगे किसी भी चीज़ को पूरे लगन के साथ तो समाज में ज़रूर मैसेज आएगा और पीड़ित लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी सहायता होगी। इस स्टॉल को देख के ऐसा लगा कि जो वाकई में और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना गंगा एक्सप्रेसवे के तहत किसानों से जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे में जा रही जमीन के संदर्भ में जांच करने के लिए गए लेखपाल पर हमला कर दिया गया। राजस्व अभिलेखों को फाड़ने की भी यहां पर कोशिश की गई है और बताया जा रहा है कि सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव का यह मामला है, जहां सलोन तहसील में तैनात लेखपाल सोमनाथ भारती IGRS के तहत गंगा एक्सप्रेसवे की जमीन के लिए गांव गए थे। तभी गांव के दबंग अशोक ने अपने कुछ साथियों के साथ लेखपाल सोमनाथ भारती पर हमला कर दिया है। से जो होके गंगा गई है तो राम सुंदर हैं, उनकी ज़मीन वहाँ जो है गंगा एक्सप्रेस के संरक्षण रेखा में जा रही है। तो इसके संबंध में जो है बेनामी के लिए उनसे कई बार पहले कहा गया था, तो लोग कहे कि हमारी ज़मीन नहीं जा रही, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ली जा रही है। तो कई बार शिकायतें प्रार्थना पत्र दिए थे, तो उनका जवाब लेके गया, फिर पुनः दिए। तो हम राजस्व निरीक्षक महोदय के साथ जो है एसडीएम साहब ने कहा कि राजस्व निरीक्षक महोदय को लेके जाइए, एक बार समझा दीजिए, उनको बता दिए सही चीज़। तो अभिलेख लेके हम उनको मतलब बताने गए, जांच में भी गए थे और बताने भी गए थे। तो मतलब श्याम सुंदर तो नहीं बाहर है, उनके लड़के अशोक कुमार यादव जी हैं, वो जो है उनको बुलाया गया। आते ही जो है मतलब कहने कि आप लोग चोर हुए हैं, दुनिया भर का आप ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ले रहे हो, फर्जी अभिलेख बनाए हो। तो वे समझाते ही रहे, तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट करने लगे। रायबरेली में पुलिस की सक्रियता से महिलाओं का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राह चलते महिलाओं की चेन स्नैचिंग करता था। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां पर ऑटो से बाजार जा रही एक महिला के साथ एक एक करके 4 महिला ऑटो सवार हो गई और उसके बाद महिला को घेर कर ये औरतें बैठ गईं। ऑटो जैसे आगे बढ़ा तो ऑटो में बैठी एक महिला ने उस महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये ऑटो में जब बैठे हम लोग तो ऑटो से थोड़ी दूर आगे आए हैं, बीमार से आगे आए हैं। तो ऑटो 2 लोग पहले आई, तो 2 लोग के लिए तो ऑटो में जगह हो गया और इसके बाद इकट्ठा सारी औरतें बैठने लगी। तो फिर पीछे से औरत आई ना, तो यहाँ जैकेट बंद था और अंदर से ऐसे हाथ डालने लगी। तो हमसे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा था, पीछे देखे ये चैन मेरा ऐसे खींच रही थी। जब हमने बोला कि चैन क्यों खींच रही है, तो कह रही हम नहीं चैन खींच रहे, हमका चैन तो खींच रही और चैन मेरा ऊपर आ गया। तो इसके बाद चैन का नाम सुनी तो